بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم طلباء و طالبات، آج ہم مدینہ عربک ریڈر بک 4 سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ مدینہ عربک ریڈر دروس اللغت العربیہ لغیر ناطقین بہا، اس کتاب سے مدینہ عربک ریڈر بنایا گیا ہے۔ مطلب اسی کتاب کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور اس کا نام مدینہ عربک ریڈر رکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں بچوں کے اعتبار سے تقسیم کی گئی ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ایسے 8 حصے بنائے گئے تاکہ بچوں کو فرسٹ سے اگر ہم یہ کتاب پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو 8ویں جماعت تک انشاءاللہ ان کی عربی مکمل ہو سکتی ہے۔ تو دروس اللغہ العربیہ جن کے پاس ہے تو ان کے پاس سیکنڈ جو جلد ہے اس کو وہ دیکھنا شروع کر دیں، یعنی دوسرے حصے کا 11واں سبق وہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ میچ کرے گا اس کتاب سے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مدینہ عربک ریڈر بک 4 کا پہلا لیسن۔ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے لیسن میں جو گرامر بتایا گیا ہے اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ فعل مضارع کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی کو پڑھا ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں کلام میں کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ڈسکشن ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، جیسے پارٹس آف اسپیچ انگلش میں بھی ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے پارٹس آف اسپیچ جو ہے عربک میں ہے۔ تو عربی میں پارٹس آف اسپیچ جو ہے نا 3 ہے۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ یہ پارٹس آف اسپیچ ہیں عربی زبان کے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فعل جو ہے اس کی قسمیں ہیں۔ اب فعل کی قسمیں ہم اردو کے اعتبار سے اگر جانیں تو اردو میں 3 قسمیں ہوتی ہے، فعل ماضی، حال اور مستقبل۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں انگریزی میں بھی کہ پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس ہوتا ہے۔ تو یہ 3 ٹینسز اردو اور انگریزی کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے یہاں پہ کچھ تبدیلی ہے۔ عربی زبان میں ماضی ہوتا ہے، فعل ماضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حال اور مستقبل کو ملا کر ایک فعل بنتا ہے، اس فعل کا نام ہے فعل مضارع۔ کیا نام ہے؟ فعل مضارع۔ تو فعل مضارع میں ہمارے پاس حال اور مستقبل، حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا عربی زبان میں فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ ویسے بہت ساری کتابوں میں جب آپ پڑھو گے تو فعل کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ امر یہ آرڈر کے لیے آتا ہے، حکم دینے کے لیے آتا ہے۔ امر اور نہیں یہ دونوں حکم اور حکم سے روکنے کے لیے، کسی کام سے روکنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے 3 زمانے، ماضی، حال، مستقبل، ان 3 زمانوں کے لیے ہمارے پاس 2 طرح کے فعل استعمال ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ تو آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع۔ اب فعل مضارع جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی فعل ہوگا اس میں غائب ہوگا، حاضر ہوگا اور متکلم ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیا کیا ہوگا؟ غائب، حاضر، متکلم ہوگا۔ تو یہ غائب مطلب 3rd پرسن جو حاضر نہیں ہے، جس سے متعلق ہم بات کریں۔ حاضر کا مطلب مخاطب 2nd پرسن، اور متکلم کا مطلب 1st پرسن جو خود کہہ رہا ہے۔ اب اس غائب، حاضر اور متکلم میں مذکر ہوگا اور مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز اور ایک ہے وہ یہ ہے کہ اس غائب میں واحد ہوگا، جمع ہوگا، حاضر میں واحد اور جمع ہوگا،
मुतकल्लिम में वाहिद और जमा। याद रखिए, अरबी जबान में वाहिद और जमा के अलावा एक आता है तस्निया। क्या आता है? तस्निया। ये गायब में तस्निया होता है और इसी तरह से हाजिर में भी तस्निया होता है। तस्निया क्या है? वो वर्ड या वो वर्ब जो दो के बारे में बताए। दो लोग अगर कोई काम कर रहे हैं, दो लोग खा रहे हैं, दो लोग पी रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे हम उसे तस्निया कहते हैं। तो अब गायब में वाहिद तस्निया जमा, हाजिर में वाहिद तस्निया जमा, लेकिन मुतकल्लिम में वाहिद और जमा होता है, तस्निया नहीं होगा। तो अरबी जबान की खासियत के एतबार से आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि तस्निया का सेगा ये फेले मुगारे में होगा, फेले माजी में होगा, और इसी तरह से इस्म में भी ये आता है, यानी फेल के अलावा इस्म में भी तस्निया पाया जाता है। तो वाहिद तस्निया जमा ये अरबी में होता है, लेकिन अंग्रेजी और उर्दू में सिर्फ वाहिद और जमा होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है। ठीक है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि हम अभी फिलहाल तस्निया को नहीं पढ़ेंगे, तस्निया को हम छोड़ रहे हैं। देखिए, तस्निया मुजक्कर में भी होगा और मुअन्नस में भी होगा। इस एतबार से ये दो और इधर दो, तो कुल चार वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। चार वर्ड्स को क्या करेंगे? हम नहीं पढ़ेंगे अभी। कब पढ़ेंगे? थोड़ी और मश्क होने के बाद, थोड़े से और असबाब होने के बाद इंशाअल्लाह ताला उसे भी हम जरूर पढ़ेंगे। वैसे हमने इसम में उसको पढ़ा है, बहुत इजी है ये, और इसमें में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने ये बात समझ ली कि गायब हाजिर मुतकल्लिम होता है, वाहिद जमा वाहिद जमा वाहिद जमा होगा। अब इसमें ये देख रहा है कि मुजक्कर, मुजक्कर के लिए क्या आता है? तो मुजक्कर के लिए आता है यज़हबू, यज़हबूना, तज़हबू, तज़हबूना। अब देखिए, हम याद रखने के लिए आपको कहते हैं कि देखिए, गायब जब भी रहेगा तो उसके पहले क्या लगेगा? या लगेगा। ठीक है, तो दोनों जगह या लगा है। लेकिन अब वाहिद और जमा में फर्क क्या, कैसे होगा? तो इसके आखिर में वाव नून लग गया है, ये ध्यान में रखना। यज़हबू यज़हबू दोनों था, लेकिन वाहिद और जमा में फर्क के लिए वहां पे वाव नून लगा दिया। इसी तरीके से हाजिर में ता लगेगी। हाजिर के ताब, हाजिर के पहले क्या आएगी? ता आएगी। अब ये हो गया तजहबू तजहबू, लेकिन वाहिद और जमा में फर्क के लिए फिर यहाँ पर क्या कर दिया? वाव नून लगा दिया। ठीक है, चलिए मेरे साथ पढ़िए। यजहबू, यजहबूना, तजहबू, तजहबूना। ये गायब और हाजिर हो गए। मुतकल्लिम में क्या है? तो हमजा लगता है और नून लगता है। ठीक है, अजहबू, नजहबू, अजहबू, नजहबू। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुतकल्लिम में अजहबू ये मुजक्कर के लिए भी आता है और मुअन्नस के लिए, यानी कॉमन वर्ड है। ये मुजक्कर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, हम अंग्रेजी जबान को देखेंगे तो जैसे गोइंग, जाना, है ना, जा रहा है, तो लड़का जा रहा हो या लड़की जा रही हो, सबके लिए आप गोइंग बोलेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन अरबी जबान में इसमें फर्क पड़ता है मुजक्कर और मुअन्नस के एतबार से, उसका हमें ख्याल रखना है। ठीक है, तो अब ये छह आप याद कर लीजिए पहले। यज़हबू यज़हबूना, तज़हबू तज़हबूना, अज़हबू नज़हबू। ठीक, माशाअल्लाह, इसको याद करना है, इसको कॉन्सेंट्रेट करना है। छह क्यों याद करना है? छह याद करने से आपको अगले 14 याद करना बहुत आसान हो जाएंगे। छह इसलिए भी याद करना है कि ये कुरान मजीद में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा इनको जब आप याद करेंगे तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और कभी भी इंसान कोई बड़ा बोझ उठाना होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके उठाता है। इस एतबार से हमारे पास ये 14 सेगों का टारगेट है, लेकिन हम पहले 6 उठाएंगे। 6 उठाने के बाद फिर हम जाएंगे मुअन्नस की तरफ। अब ये मुअन्नस के 4 हमारे पास हैं। अब इन 4 को जरा समझते हैं, और हमने 6 उठाने के लिए आपको पहले क्यों कहा है उसकी भी एक खास वजह हम आपको बताएंगे। देखिए, हमने बताया था कि गायब के लिए या आता है। क्या आता है? या आता है। अब यहाँ
दोनों जगह पे या आना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे कि मुअन्नस के सेगे में या नहीं आता है बल्कि ता आता है। तो वाहिद गायब मुअन्नस के सेगे में ता आएगा, जबकि यहाँ पर हमको या आना चाहिए था। तो ये तज़हबू बन गया। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर भी तज़हबू और यहाँ पर भी तज़हबू है, तो दो मैच हो गए, लेकिन दोनों अलग अलग है। पहली बात तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस का मसला, इसके अलावा ये गायब के लिए है और ये हाजिर के लिए है, दोनों वाहिद के लिए, लेकिन गायब और हाजिर के लिए। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब आप आगे चलेंगे और याद करते रहेंगे तो फिर आपके लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। ये आपको नॉर्मली आप सेंटेंस जब फ्रेम करते हैं तो उसकी फ्रेमिंग से आपको ये इंशाअल्लाह समझ में आएगा। तो तज़हबू ये मुअन्नस का सेगा है, लेकिन इसकी जमा जो आते हैं वो यज़हबन, यहाँ पर या आती है। ठीक है, तज़हबू यज़हबन। ठीक, अब इसको याद रखने के लिए देखिए, याद रखें कि जमा का जो सेगा है यज़हबन, उसी की तरह से तज़हबन है। ठीक है, तो यज़हबन तज़हबन, सिर्फ या और ता का फर्क है। ठीक, अब मुअन्नस के सेगे में यहाँ पे तज़हबु आया है, तो यहाँ पर भी तज़हबु आ सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर भी तज़हबु आता तो इधर भी तीन जगह पे तज़हबु हो जाता था। इसके लिए यहाँ पे एक चेंज आ गया कि ये जो है यानू इसमें बढ़ा दिया, तो तज़हबीना हो गया। क्या हो गया ये? तज़हबीना। तो मुअन्नस के चार सेगे इंशाअल्लाह आपको समझ में आए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो दर्स के दौरान आप उसको पूछ सकते हैं। तज़हबु यज़हबन, तज़हबीना तज़हबना, ये हो गई फ़ेल मुदारे की गर्दान। अब इसके बाद बहुत ही अहम चीज हम समझने जा रहे हैं कि फ़ेल मुदारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों के माने पाए जाते हैं। अलबत्ता इससे पहले अगर सीन लग जाता है, यानी मुदारे पे जब सीन दाखिल होता है, उस वक्त मुदारे मुस्तकबिल के माने में खास हो जाता है। इसलिए इस सीन को हर्फुल इस्तिक़बाल भी कहते हैं। ठीक है, और मुजारे मनफी, यानी मुजारे को अगर नफी के माने में करना हो तो क्या होता है, तो उसके लिए जिस तरह से जब हम माजी पर मा दाखिल करने के बाद माजी मनफी बनता है, इसी तरह से मुजारे पे ला दाखिल करने के बाद जो है मुजारे मनफी बन जाता है। जैसे दखल तू, मैं दाखिल हुआ, ये माजी है। मा दखल तू, मैं नहीं दाखिल हुआ, ये माजी मनफी है। अदखुलू, मैं दाखिल होता हूँ या हूँगा, ये मुदारे है। और ला अदखुलू, मैं नहीं दाखिल होता हूँ या हूँगा, ये मुदारे मनफी है। इसके अलावा चंद अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें फेल पर दाखिल किया जाता है, जैसे उनमें से यहाँ पर दो, मादा और मता। ये मादा और मता जब फेल पर दाखिल होते हैं तो माने में कुछ चेंज करते हैं, तब्दीली हो जाती है। जैसे मादा अकलता, आपने क्या खाया। मता अकलता, आपने कब खाया। मादा या अकुलू, वो क्या खाता है। मता या अकुलू, वो कब खाता है। ठीक है, तो ये दोनों जब फेल पर दाखिल हो जाते हैं तो अपने माने को उस फेल के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही अहम लफ्ज अम्मा का हमें इस्तेमाल समझना है और इसे इंशाअल्लाह आज के दर्स में हमको पढ़ना है। अम्मा क्या है? अम्मा, इस लफ्ज का इस्तेमाल काफी होता है। उसे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देना होता है, कुछ कहना होता है। जैसे हमने सवाल किया कि जैद, कासिम और अहमद कहाँ से हैं, तो इसके जवाब में अम्मा का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर मिन ऐन ज़ैदुन व कासिमुन व अहमद, तो जवाब में आएगा ज़ैदुन मिनल हिंदी व अम्मा कासिमुन फहुव मिनल याबानी व अम्मा अहमद फहुव मिन तुर्की। ठीक है, तो ये अम्मा के जरिए से, तो अम्मा गोया के बहरहाल हम तर्जुमा करते वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब देखिए एक और बहुत ही अहम चीज जो हमें पढ़नी है वो है मस्दर। क्या कहते हैं उसको? मस्दर। मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर उस इस्म को कहते हैं जो जमाना और फेल से फाइल से खाली हो। इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। तीन जमाने हमारे पास, माजी, हाल और मुस्तकबिल। ये इसमें जमाना भी न पाया जाता हो और न ही इसमें कोई फाइल हो। जैसे दखल का माना हम करेंगे वो दाखिल हुआ, है ना, लेकिन दुखूल का माना होगा दाखिल होना। मजदर के कई अवजान हैं, यहाँ इन्हें इस सबक में इंशाअल्लाह फ़ऊलुन का जिक्र होगा और उस अवजान से मुताल्लिक हम इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मसदर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये चंद चीज़ें इस सबक की थी जो बहुत ही अहम आपके सामने रखी गई हैं। आपसे गुजारिश है कि इसे देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको नोट का भी PDF भेजा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।